2 minutes. Okay, let's start it. Let me just. Anji. So let's pick up any topic. Let's start with, okay, so like you said, let's study, madam asked you the question on ionic radius, right? So essentially she is asking questions on, once you gain or lose electron, what is the impact? So you are a normal atom, and then you lose or gain, what happens to the size of your. So you can see, like, most of the questions are what they are. There is no difference in what madam is asking or what we are studying. Okay. We have to pick the topic of radius, right? ठीक है, हमने एक बार रेडियस तो देख ही लिया था, कोवेलेंट वाला और मेटालिक रेडियस, वैन डर वाल रेडियस, एंड वैन डर वाल के अंदर see, if you talk about a covalent radius, then if you draw two circles, the two circles are overlapping. Yes, sir. And in a metallic radius, जो crystal वाला होता है metals के अंदर, two spheres are touching each other. Yes, sir. There is no overlap. बिल्कुल just about touch हो रहे होते हैं. Van der Waal में the two radius are not touching each other but are away from each other. So generally covalent radius सबसे छोटा होता है, क्योंकि उसमें दोनों atoms overlap करते हैं circles. और मेटालिक रेडियस नंबर 2 पे आता है क्योंकि दोनों सर्कल टच हो रहे हैं. वैन डर वाल में तो दोनों दूर दूर हो जाते हैं. देयर इज अ गैप बिटवीन देम. ओके, सो जनरली जो वैन डर वाल जो सो कॉल्ड होता है, इट्स अ वीक बॉन्डिंग. तो दोनों कोवेलेंट इज वेरी स्ट्रांग. तो द मेटालिक वेरी, हाँ जी, metallic bond जो बोल रहे थे, medium between the covalent and van der Waal. Okay, sir. Van der Waal is not a bonding in it. कोई bonding नहीं होती है. It's just some internuclear force. That's all. Bonding is only associated with the word covalent and metallic. That's all. Electrovalent. There is nothing called as, हाँ, मतलब एक दूसरे से अट्रैक्शन होती है इन दोनों की. That's about it. So वो van der Waal, these are weak forces, but you don't need to worry about it. Okay, so let's do this. Okay. Okay. First of all, let's study the meaning of the word ionic radius. होता, what is an ionic radius? होता क्या है? Ionic radius. It is nothing. It is the distance between the nucleus and outermost shell of an ion. Okay. But अब न्यूट्रल नहीं है एटम. अभी तक न्यूट्रल एटम्स पढ़ रहे थे फॉर द साइज. लेकिन अब मान लो सोडियम प्लस बन गया, एक इलेक्ट्रॉन चला ही गया, तो कटाइन बन गया आपका. सोडियम बिकम सोडियम प्लस, सो सोडियम कटाइन. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेडियस ऑफ अ कटाइन की अगर हम बात करें. अब मुझे बताओ, अगर सोडियम प्लस बनता है, देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज हायर, राइट? 11 ही रहेगा ना.
लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। 10 से सर इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा या घटा? तो स्क्रीनिंग इफेक्ट घटा। घटा, क्योंकि बीच में जो स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो कम हो गए, कम हो गए, और है ना? सर न्यूक्लियस उसको अपने तरफ ज्यादा या अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ गया। सर स्क्रीनिंग का कम होने का मतलब है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. सर So the valence electron experiences that nucleus is holding me now more tightly. ठीक है ना? So therefore the cations, if they are undergoing a contraction, बाकी इलेक्ट्रॉन को सडनली ज्यादा ताकत लगने लग जाती है न्यूक्लियस से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं. yes, sir. So the size of the cation becomes smaller than the neutral atom. Should I repeat or you got it? I got it. So it overpowers the Exactly. If you have to use a correct layman's language to explain someone, if I say it technically, I will say the screening has gone down, and therefore the effective nuclear charge has won. It has won the battle against screening. yes, sir. So the overpowering has been done by the effective nuclear charge, has won the battle against the screening effect, and therefore the Z effective is now high, and therefore the contraction, माने अंदर की खींचने की जो है, so therefore the size of a cation is smaller than the size of the neutral atom. Okay. Now, second part. Hmm. If you lose more than one electron, Huh. there are iron loses 2 electrons, and sometimes iron also loses 3 electrons. Oh, okay. Okay, sir. Ferrous बनता है, ferric बनता है, ferrous oxide, Yes, sir. ferric Yes. oxide, right? Yes, sir. Now the question that arises is, if the number of electrons which are lost is more than one, right? So now the positive charge increases, मतलब उसकी जो feeling है वो ज़्यादा तेज हो जाएगी बाकी electrons के ऊपर, right? Yes, sir. Which means the effective nuclear charge will become very strong as compared to the screening effect. Yes, sir. You lost first electron, you became smaller. Then you lost the second electron, you became still smaller. You lost the third electron, you became again. So with every subsequent electron loss, your size continues to decrease. But it would be difficult for the third and second atom to leave the atom. And therefore that concept of how easy it is to leave or how easy it is to accept the electrons is also dependent. जैसे हमने पढ़ा था आयनाइजेशन में, रिमूवल था मेनली हमारा फोकस. हाँ. सो प्रॉपर्टीज के अंदर जो रीजनिंग है वो घूम फिर के स्क्रीनिंग पे, इफेक्टिव चार्ज पे, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठा है, पी में या इसमें, वहीं घूम फिर के आ जाती है. हाँ सर. सब में वो लिंक्ड है आपस में सब. तो द रेडियस ऑफ द cation which has lost 3 electrons will be smaller than the radius of the cation which has only lost 2 electrons. Yes, sir. क्योंकि effective nuclear charge is increasing continuously with every loss of electron. Okay. Yes, sir. The ionic radius, okay, also depends on one more thing, okay, which is the number of ions that can get around the given cation. मतलब coordination number. आपने coordination number पढ़ा है अभी तक? Coordination number, sir, I don't. You don't know. चलो रुको. So let's not study. अभी चिंता मत करो. Leave it. Okay. Now let's talk about radius of the anion. हाँ. Anion में gain हो रहा है electron का. हाँ सर. Anion बनाने के लिए आपके पास electron affinity should be positive, so that you can lose the energy easily and become stable. You will lose the, you will gain the electron because your electron affinity is very nice. You say, "आ जाओ electron, come." Yes, sir. So your electron affinity is positive, which means you love to have electron with you. Yes, sir. If you love to have electrons with you, you will become an anion.
Yes, हाँ, right? yes sir, Negatively charged. yes sir. Which means now who will win? Screening effect बढ़ा या घटा? तो स्क्रीन में से बढ़ गया. तो जो न्यूक्लियर चार्ज है इफेक्टिव वो कम हो गया, हाँ, तो अब वो एक्सपैंड हो गया. सो द radius of the anion becomes larger than the radius of the neutral atom. oh okay sir. हाँ, Got it? हम्म, उल्टा आंसर आपकी मैम ने जो पूछा अनाइन में कन्वर्ट कर दिया उसको. दैट्स ऑल. हाँ सर, हाँ सर. ऑलराइट. ओके, टेल मी व्हाट आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस. हमने पढ़ा था. Sir, same number of electrons. करेक्ट. सो आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज का एग्जांपल था नाइट्रोजन 3 माइनस, हाँ, O2 माइनस, फ्लोरीन 1 माइनस, नियॉन, देन सोडियम प्लस एंड Mg2 प्लस. सब में 10 इलेक्ट्रॉन है. हाँ, लेकिन नाइट्रोजन में सबसे कम प्रोटॉन होते हैं, 7, और मैग्नीशियम में 12 होते हैं. हाँ, तो जैसे जैसे आपका ये सब में इलेक्ट्रॉन्स है में, लेकिन एक बात है कि जैसे ही आप नाइट्रोजन से मैग्नीशियम की तरफ जाओगे, हाँ, नाइट्रोजन से मैग्नीशियम की तरफ, तो आपका जो इफेक्टिव चार्ज है हम्म, वो बढ़ता जाएगा. प्रोटॉन्स तो बढ़ते ही जाएंगे हाँ, क्योंकि Z ऑफ मैग्नीशियम इज 12. yes, sir. इलेक्ट्रॉन सब में सेम है. हाँ, तो सबसे ज्यादा कौन छोटा हो जाएगा साइज में? सारे एक ही इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, लेकिन मैग्नीशियम के पास प्रोटॉन सबसे ज्यादा है. हाँ, Mg2 प्लस सबसे छोटा होगा या N3 माइनस? N3 माइनस नेगेटिव बन गया, अनाइन बन गया. पहली बात तो अनाइन बनने से तो वैसी साइज तो की बड़ा होगा. बड़ा हो जाता है. हाँ और सर. फिर पॉजिटिव चार्ज कितने हैं इसके पास? 7. हाँ, मैग्नीशियम को देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है then हाँ, और 2 प्लस बना हुआ है. yes sir, so 12. 2 प्लस का मतलब है कि 10 इलेक्ट्रॉन हो गए. तो हाँ, स्क्रीनिंग तो कम ही हो गई इसमें. स्क्रीनिंग भी कम हो गई और चार्ज एटॉमिक नंबर 12 हो गया. हाँ, तो वो जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ गया. so हाँ, तो सबसे छोटा कौन बन गया? so magnesium. यस. Yes, sir. So if you're given an isoelectronic ion having same number of electrons, then the one with largest positive nucleus, mane protons, will be the Smallest. smallest. Okay, sir. You can get you can get a question that there is a ratios are given of, जैसे अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम के Z की 12 और डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 12/10. हाँ, सोडियम की बात करूं तो 11/10. सोडियम प्लस की. yes sir, 11/10. नियॉन की बात करूं तो 10/10. तो सबसे बड़ी रेशियो आ रही है मैग्नीशियम 2 प्लस की. ऊपर एटॉमिक नंबर है, नीचे इलेक्ट्रॉन्स है, 12/10. हाँ सर. तो जिसकी रेशियो सबसे बड़ी वो सबसे छोटा, हाँ, क्योंकि उसमें स्क्रीनिंग भी फेल हो गई है और जो आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत ड्रास्टिकली बड़ा हो गया एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो वो ओवर पावर कर लेगा, राइट? यस, ऑफ कोर्स. तो द साइज विल गो डाउन. यस सर. ओके. इलेक्ट्रॉन में तो वीक बढ़ गया ना अब धीरे धीरे, क्योंकि जब तक आप नाइट्रोजन थे तब तक आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन हुआ था. प्लस चार्ज में भी कोई खास 7 ही थे सिर्फ. हाँ, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी छोटा है. हाँ सर. और स्क्रीनिंग इफेक्ट बड़ा है, तो साइज जो है अपना बढ़ गया. यस सर. ऑल्दो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर था सबसे छोटा, लेकिन उसका साइज सबसे बड़ा हो गया. और मैग्नीशियम भाई जिसका एटॉमिक नंबर सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा हो गया. हाँ सर. मेकिंग सेंस? ठीक है. ऑलराइट. So you can get some tricky questions on this also. Let me tell you, if you notice the cations which are created in the group 1 and 2. यस सर. ग्रुप 1 मतलब वर्टिकली नीचे है, लिथियम वाला, सोडियम, राइट? यस सर. लिथियम का जो कटायन का साइज होता है वो सब बहुत छोटा होता है.
हाँ ग्रुप में बात कर रहा हूँ मैं। और यस सर। सीजियम तक अगर जाओगे तो बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा बहुत बुरी तरह से। और जो उसी तरह बेरिलियम में भी होगा, उसी हाँ तरह बोरॉन वाले में भी होगा। तो पहले तीन वन टू 1s1 2s1 में जो कटाइंस बनते हैं, हाँ 1s1 और 2s1 में वो डाउनवर्ड जाने पे उनका साइज बढ़ता है। अच्छा हाँ हाँ यस अगर सर। आप अब जाओ पी में, ठीक है हाँ। पी में तो ये तो मेटल हो गए पहले दो ग्रुप तो मेटल वाले हो गए, यस सर। कैल्शियम, ये वो सॉफ्ट मेटल्स है ना। हम्म। अब आप 13 में जाओ, मतलब पी पी में चले जाओ, पी ब्लॉक में, यस सर। जहाँ पे 6 ग्रुप्स होते हैं, क्योंकि पी वो पी वाला होता है, तो पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हाँ तो P1 P2 P3 P4 P5 P6, 6 ग्रुप हो गए, यस सर। राइट। तो वो 6 ग्रुप होने से 6 पी तक ही जा सकते थे आप, लेकिन उसमें दे दे ऑलवेज मेक अनायंस। तो अब नाइट्रोजन से देखना शुरू, कार्बन के बाद देखो, अब 15 पे देखो, 15, क्योंकि 14 नंबर तो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है बाय द वे। हाँ सर कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम स्टेनम वाला तो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, उसको तो भूल ही जाओ, आयन का चक्कर ही नहीं है। हम्म। और बाय द वे सारा पीरियोडिक टेबल 80% तो मेटल ही है। यस सर। ट्रांजिशन एलिमेंट सारे मेटल है। सर एस इनरटाइम। ब्लॉक्स, हाँ वो भी मेटल है, अच्छा वो अच्छा सब सर। मेटल है। ओके। बहुत कम है जो नॉन मेटल है, वो पी ब्लॉक में है थोड़ा बहुत नॉन मेटल। अच्छा ओके सर। और सर जो बीस मैग्नेट। परसेंट नॉन मेटल है वो इसमें है, लेकिन हाँ हाँ वो भी मेटल ही है। वो तो बेसिकली, वो तो क्या है कि वो जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शन टाइप होते हैं ना, उसी में बनाए जाते हैं वो। अच्छा ठीक है सर। डी में हो गए ना, डी में और एफ वाले। यस सर। तो 80% ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज मेटल। मेटल, ओनली 20% इन पी ब्लॉक इज, पी नॉन में भी मेटल। बल्कि यू विल फाइंड सम मेटल्स, बिकॉज इफ यू लुक इनटू द ग्रुप नंबर 13, यस सर। एल्यूमिनियम इज अ मेटल। यस सर। तो पहले 1s1 2s1 सारे मेटल है, हाँ और उसके बाद 13 भी मेटल ही है। ये मेटल है। यस यस सर। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये सब मेटल है। बट फर्क ये है कि ये 3+ बनाते हैं कटायन। हाँ हाँ सर। और अगर मैं और कार्बन तो हो गया कोवलेंट बॉन्ड, छोड़ दो। और सिस्टर अच्छा, सिलिकॉन भी। हाँ सिलिकॉन ऑल्सो, ये सब ऊपर से नीचे लेड तक कोवलेंट है। ओके सर। जर्मेनियम, सिलिकॉन। अब बात करो 15 से 17 तक, 15 16 17। हाँ नियॉन, नियॉन का तो कुछ मतलब ही नहीं है, इनर्ट है। ओके। 15 16 17 अगर आप बात करो ग्रुप्स की, हाँ तो ये सारे के सारे अनाइन बनाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। गेन करते हैं। लेकिन जो इसमें भी वही है, अनाइन का साइज नीचे जाने में ग्रुप में बढ़ जाता है। 15 नंबर में नाइट्रोजन 3-, यस सर। फॉस्फोरस 3-, बहुत बड़ा। हाँ और एएस का 3-, 222 का अनायन और बड़ा। यस सर। तो अनायन साइज इन अ ग्रुप इंक्रीज। ऑलवेज इज इंक्रीजिंग। ओके सर। गॉट इट। मेटल्स के अंदर भी सेम ही था। मेटल हाँ का मतलब है ग्रुप 1 and 2 एंड देन 13। हाँ और सर मेक सेंस? पीरियड वाइज। यस सर। तो कुछ पूछ रहे थे आप? सर मतलब पीरियड वाइज। पीरियड वाइज कोई सेंस नहीं बनता कंपैरिजन में, क्योंकि हाँ 1 और 2 और 13 हम्म आर cations, हम्म। एंड देन यू हैव अनायंस। यस सर। लेकिन यस। अगर मैं बात करूं विद इन मेटल हम्म। पीरियड में, हाँ अगर मैं सिर्फ कटायन का कंपैरिजन करना चाहता हूं, हाँ तो सबसे राइटवर्ड मूव होने पे रिड्यूस होता है साइज। अच्छा। तो 1 का लिथियम सबसे बड़ा, हाँ बेरिलियम 2+ उससे छोटा, हाँ हाँ। और बोरॉन उससे भी छोटा। ओके सर। ओके सर। उसी तरह सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, हम्म। कटायंस जो पीरियड्स में आते हैं मेटल के, हाँ उनका साइज जो है वो घटता जाता है। ठीक है सर। और मेटल जिसको हम सो कॉल्ड कटायन बोल रहे हैं, वो तो ग्रुप नंबर 1 2 और 13 ही है, और तो कोई है ही नहीं। हाँ सर। हाँ सर। अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और दीज नंबर 13। हाँ सर। नंबर 13 मतलब पी में भी कुछ मेटल है। हाँ तो एल्यूमिनियम और। हाँ, उसके बाद गैस ही गैस है, देख लो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब
ब्रोमीन वगैरह वगैरह ना. Yes, sir. ओके, क्लियर है. आई थिंक ये बहुत, पर ये जरा डिस्कशन ओरिएंटेड है. अगर आप इसको डिस्कस कर लो किसी के साथ, फिर आप उठा के इसके नोट्स बना लो, तो एकदम क्लियर हो जाता है कि क्या हो रहा है. वही स्क्रीनिंग और वही स्क्रीनिंग के बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये करते कराते ही वो सारा आंसर आ जाता है. हाँ सर. Who's winning the battle, and then if the battle is not clear, then go at the orbital level. Yes, sir. You can find out the what is happening on the front Orbital. of, हाँ, उससे डिसाइड फैसला हो जाएगा कि क्या होगा. P वाला P में है जी, सबका सेम है शेल, तो P में है तो वीक होगा, आराम से निकल जाएगा. फिर वो S में होगा तो बहुत मुश्किल होगा निकलना. हाँ. ठीक है. तो D में तो ऑर्बिटल इजी होगा. Yes. Okay, sir. Okay, let's talk about the one more property. Did we study electron affinity? Sir, I don't think. Okay, तो आज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ लेते हैं. बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है. Sir. कल हमने जो पढ़ा था उसमें वी वर रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन, Yes, so sir. that was your ionization, right? But now you will not remove the electron. You will Gain. expect that the gaseous atom, हम्म. which is in the ground state, मतलब ना अभी वो अनाइन नहीं बना, हाँ. और वो फ्लोरीन वगैरह गैसियस ही तो है, वही तो लेंगे इलेक्ट्रॉन, और तो मेटल्स तो लेंगे भी नहीं इलेक्ट्रॉन, हाँ. उनको तो बाहर निकाल दो. तो जो भी आप स्ट्रेटेजी अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की पढ़ते हो, कहाँ पढ़ोगे आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को? यू विल हैव नो चॉइस बट टू स्टडी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी in that part of the period where you have gases, because they are going to make an ion, they accept electrons. Yes, sir. तो अब हमने पता लगाना है कि how easy it is for a gas to accept the electron. Not too easy. हाँ, it is relative. तो जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो गैस जो है अपना ऑक्टेट पूरा कर लेती है. हाँ. 287 becomes 288. Yes, sir. When you complete the electron, your energy goes down. So आपको इलेक्ट्रॉन मिला, आपकी एनर्जी लोअर हो गई. Yes, sir. तो आपकी एनर्जी जो लोअर हुई गई कहाँ पे? आप x पे थे, 0.9x पे आ गए, 0.1x गया कहाँ? वो निकलता है बाहर. तो kinetic energy. नो, नॉट काइनेटिक. हीट निकलती है. Oh, yes, sir, yes, sir. इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. When you lose heat Yes, by gaining the electron, right? So your energy goes down and you release energy to lower your energy. sir. You will say my affinity is very positive. I want the electron to be received. I am very happy to receive the electron, right? But Yes, sir. my enthalpy, which is the electron gain enthalpy, is negative, which means I have lost energy as a system. Oh. I, as a gas atom, I have very high positive electron affinity. I want to get electrons. हाँ. So I will say affinity का क्या मतलब है? उसकी तरफ रुझान, उसकी तरफ attraction. मेरा I am a gaseous atom. I want to gain electron. So my electron affinity is positive. Yes, sir. But after I gain the electron, I lose energy. So therefore, my electron gain enthalpy is negative because I've lost energy. Okay, sir. The more negative, the more the energy I lose, the stabler I'm going to become. So yes. अगर आपकी एनर्जी कम होती जाए तो आप ज्यादा स्टेबल हो जाते हो, नहीं तो रेस्टलेस हो जाओगे ना. बड़ा हाई एनर्जी है बड़ी. हाँ, sir. Your restlessness goes away if your energy is down. Similarly, they were very restless to get an electron. They got the electron, and when they got the electron, what happened? The octet got completed, and they become very stable and lost energy in the process. They went to a lower energy state. Yes, So sir. a 9 is at a lower energy state than the original gaseous neutral atom. Okay. And it releases some energy. Supposing it releases 200 kilojoules. But I will say the system
has lost 200 kilojoule. So my system will say I have lost it. Therefore, the sign of the energy I'm going to put is minus 200. Yes, sir. If I compare myself with another anion which has lost 300, then उसकी तो फिर affinity और ज्यादा है मुझसे, हाँ. है ना? Yes, sir. तो you can do a comparison. Okay, who has got more electron affinity is positive if you love to get electron. But whose is higher? Who releases more energy? Who loses more energy has more affinity. ठीक है? हाँ. बड़ी कॉमन सेंस है, कोई इतना कुछ वो है नहीं इसके अंदर. हाँ, sir. Okay. So if I were to say define the word electron affinity, what do you think it is? Sir, It's a measure of tendency of any isolated gaseous system to receive the electron. so gases, only gases. Obviously, I told you, metals will not gain electron. They cannot. Yes, sir. Yes, sir. They only lose. वो तो बताते ही कटायन है. हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पढ़ना ही वही हमें है. हाँ, sir. अनायन कटायन तो पढ़ेंगे ही नहीं हम इसके अंदर. हाँ. So what does it measure? It measures the tendency of an isolated gaseous atom to receive the electron. Okay, sir. The greater the tendency, more is the electron affinity. And therefore it means that more is the electron affinity, more is the negative value of the electron gain enthalpy. Agreed? You will lose more energy, which means. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये तो समझा चुका हूं मैं. हाँ जी, sir. So whenever you see the word electron gain enthalpy, and somebody tells you my electron gain enthalpy is 200, correct him. Tell him you mean you are saying minus 200 because Yes. Negative. system is saying system has lost it. Okay. Now, so a system of gaseous electron becomes an anion by gaining the electron because it loves to gain the electron. Yes, sir. But But situation number 2, now the system wants to gain another electron. oh, Just like ionization, the second electron to be removed. Now you want to gain the second electron. Some do make 2 minus. कई एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद एक और इलेक्ट्रॉन मिलकर 2 माइनस बन जाते हैं. इसमें क्या है? हाँ, sir. Now you know that you had already gained an electron and you are negatively charged because you have already gained one electron. Yes, sir. Now I have to give a negative electron to somebody who is already an anion. The moment they see the another electron is being given to us, they start repelling the electron. Oh, Obviously, I am an anion. Why will I take an electron? Electron is also negative. I am also a negative gaseous atom. yes, sir. You were repel. Repel, right? And therefore, now if I have to put the electron on this, I have to do work, which means this time the system will gain energy and the reaction will be endothermic. Oh, yes, Yes. sir. Yes, sir. So, okay, sir. ठीक है? So which means in the process of gaining the second electron, the numerical value of electron gain enthalpy is positive. The system has to receive energy. You have to do some work to get the second electron. Otherwise, it will not accept. So, repel करेगा. हाँ. तो पहले इलेक्ट्रॉन में you lost the energy as a system. Yes, You sir. became stable, you are happy. हम्म. Now you want to become a divalent anion. एक और ले लो जी इलेक्ट्रॉन. हाँ. So now you will have to accept energy. People will do work on you and force that electron to be imposed on you.
Okay. which means the first electron gain enthalpy is negative, Hmm. right? Yes, sir. But if you see the value, it will be very small as compared to the second energy. मान लो आपने फर्स्ट टाइम पे एनर्जी लॉस करा था -200, हाँ एक इलेक्ट्रॉन मिल गया. हाँ When सर the मिल गया. second electron is pushed on you, the value will not be like plus 300. It may be plus 600 because losing energy was very simple. You had an affinity. Yes, sir. But now, if the second electron is being forced upon you, You you would may have gain to apply many times the energy, which means you may have to apply 600. Hmm. You lost only -200 by gaining one electron, but at the time of second electron addition, Hmm. they had to give you 600 kilojoules to put the second electron here, divalent, Yes, sir. right? तो हम उसका शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा. क्या बढ़ जाएगा? शील्डिंग इफेक्ट. शील्डिंग इफेक्ट उसका हाँ तुमने 2 इलेक्ट्रॉन गेन हाँ कर लिए. ठीक है. yes, you can say that, yes, finally it will boil down to that only. बट आप ध्यान लगाओ ना, आप अगर ऑक्सीजन का आयन बनाते हो O2 माइनस एग्जाम्पल के तौर पे, हाँ पहले स्टेप में यू हैव फॉर एग्जाम्पल फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस you have to give, for example, assume 100 and say x joules, right? Okay. So if you want to become oxygen to Hmm. oxygen anion, Hmm. you will lose energy. Energy. Say you Yes, lost sir. x joules per mole. Yes, sir. Avogadro number of anions are being created. Avogadro number बहुत है हाँ. खरबों में. So you have lost x joule of energy and you have become O minus. Oh, Now I have to put one more electron on you, and now you see I have to give you 5x amount of energy, okay. and you have become O2 minus. Okay, sir. Correct? Yes, sir. Overall, if I see the equation, right? Hmm. Overall, the overall electron gain enthalpy is minus x plus 5x. Yes, sir. Step number 1, a loss of x. Yes, Step sir. number 2, a gain of 5x. Yes. Net enthalpy gain has become positive. That means the reaction is endothermic. So first step is loss of energy, but the second step is gain of energy in multiple times the loss of energy. Loss of energy x हो रही है माइनस एक्स, और जब गेन की बारी आई पॉजिटिव में, क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन जोड़ना मुश्किल था, दैट इज 5 टाइम्स. Yes, sir. राइट? तो द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी is has to be understood step by step. First step is automatic, second step is complicated. Complicated is in you must understand what's happening. Complicated तो कुछ भी नहीं है. हाँ, sir. Okay? Yes, sir. Got it. हाँ. Got it. All right. Let's discuss. Yes, sir. तो एक चार्ट होता है सारी गैसेस का, हाँ. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चार्ट बोलते हैं. उसमें हर मोल के लिए, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन को आपको क्लोराइड बनाना है. हाँ. 1 mole of chlorine has to be converted into 1 mole of chloride. Okay. You need 349 kilojoules. You will lose in the first step, Yes, sir. but in the second step you will gain. Hmm. Yes, sir. Tricky है, right? अच्छा खासा. Sir, थोड़ा सा. So O माइनस बनाने के लिए लॉस ऑफ एनर्जी है, O2 माइनस के लिए गेन करनी पड़ती है एनर्जी हाँ. नेट, क्योंकि सेकंड स्टेप में कई गुना ज्यादा एनर्जी आपको रिसीव करनी पड़ती है. हाँ. तो आपका नेट रिजल्ट 4x ही हो जाएगा एग्जाम्पल के तौर पे, राइट? Yes, sir. कभी कोई एटम ज्यादा एनर्जी गेन कर
कर लेगा, करेगा। मतलब लाइक सर, एक एटम है जिसने 0.27 जूल्स लूज करी। एटम या गैसियस एटम? गैसियस एटम, सॉरी। तो यू आर मेकिंग एन अनायन। यस सर। ठीक है, बनाओ। लूज। फिर सर सेकंड स्टेप, एक और एटम ऐड करनी, इलेक्ट्रॉन ऐड करने के सेकंड स्टेप गेन करनी होती है एनर्जी। यस। सो इट गेन, आई मीन सही नहीं होगी 2 जूल्स, बट इट गेन अराउंड 2.5 जूल्स। जैसे, मल्टीपल टाइम्स होगा, मे बी 8 जूल हो जाएगा। पहले अच्छा स्टेप में कितना लूज करा आपने? सर 0.5, तो मैंने ठीक है, तो आपने 2.5 टाइम्स कर दिया आपने, ठीक है, ऐसा। तो प्लस 2.5 हो गया। हाँ। और पहले स्टेप में आपने पॉइंट माइनस 0.5 था आपका, हाँ सर। तो नेट तो 2 जूल आपको लेना पड़ा ना पूरा पूरा, पूरा करने के लिए। हाँ। यस, तो 2 माइनस बनाने के लिए कहने का मतलब है 2 जूल चाहिए। हाँ। गैसियस एटम प्लस 2 जूल्स हम्म। विल रिजल्ट इन गैसियस एटम 2 माइनस। ओके सर, ओके सर। यही पूछ रहे हो ना आप? हाँ। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया मैंने, एक एनर्जी सब्ट्रैक्ट हो गई। यस सर। ठीक है, हाँ। अग्रीड। यस सर, यस सर। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव दिस थ्रू द पीरियड। ओके। ठीक है, हाँ। ऑलराइट। सो if you see in a period, if you you already know that इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो पढ़ना ही गैस के लिए। हाँ। तो एफिनिटी जो पी पी वाली साइड है हम्म। वहां सबसे ज्यादा है, हाँ सर, सर 15 ग्रुप से लेकर। और बाकी जगह पे तो कम ही है। तो हम बोल सकते हैं कि इन अ पीरियड हम्म। द एफिनिटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यस सर, तो बोल सकते हैं। बोल सकते हैं ना। और हाँ। हाईएस्ट कहाँ पे हो जाती है? जाके हेलोजन पे। हाँ सर। अच्छा, अगर हम, चलो वैसे तो अनफेयर कंपैरिजन है, फिर भी हम्म। मेटल में मेटल वन जो ग्रुप वन है हाँ। वर्सेस ग्रुप टू, ओके। ठीक है, और हाँ। सेम पीरियड ले लो कोई भी, लाइक जो NS1 तो वाला है फॉर एग्जांपल, जैसे आप ले लो लिथियम और बेरिलियम, हम्म। पीरियड तो वही है ना, सेम, हाँ। ग्रुप अलग अलग है। हाँ सर। तो अगर हम कंपेयर करें तो जो ग्रुप वन मेटल है उसकी एफिनिटी ज्यादा होगी या ग्रुप टू की? तो ग्रुप 1। यस, मतलब। दैट इज करेक्ट, बिकॉज ग्रुप वन में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS1। यस सर। ठीक है, हम्म। एंड सो लेकिन ग्रुप टू में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, फुली फिल्ड है। हाँ। तो NS1 जो है वो थोड़ा अनस्टेबल है। हम्म। अगर उसे इलेक्ट्रॉन लेना पड़ जाए अपना NS2 बनाने के लिए हाँ। तो वो तत्पर है, क्योंकि वो हाफ फिल्ड है। यस सर। लेकिन NS2 तो भरा पड़ा है, वो क्यों लेगा? हाँ। तो इट्स इजियर टू ऐड इलेक्ट्रॉन टू NS1 ना। यस सर। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विद इन मेटल्स हम्म। is higher in group 1. You're right. यस सर। Right? हम्म। Okay. अगर हम बात करें बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ओके, और मैंने 15 ग्रुप नंबर 15 की बात करें, हम ग्रुप नंबर 2 15। की बात करें, राइट, ये जो है जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये वगैरह जो है इनर्ट गैसेस, हम्म। सी दे हैव some tendency to gain electron, right? But so which means they have negative electron affinity. They don't want. Metals है ना, why will they want anyway? मतलब क्यों चाहिए इनको, right? हाँ। हाँ। तो और नोबल गैसेस तो वैसे ही तो वो तो ऑक्टेट फुल स्टेबल है, उनको कोई लेना देना नहीं है इलेक्ट्रॉन से, राइट? हाँ। और जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है उनके केस में वो NS2 कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी वो भी फुली फिल्ड अच्छा। है ना। और तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर आप ग्रुप नंबर 14 पे हो, मतलब कार्बन पे हो, हाँ। टू कार्बन 15 पे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो जाती है। अच्छा। ग्रुप कम हो ग्रुप। जाएगी ना इलेक्ट्रॉन हाँ। एफिनिटी, बट डिक्रीज, राइट?
Yes, sir. और Decrease. या So group 17 में 17 तो सबसे हाईएस्ट है. दे आर हाँ रेडी टू टेक इलेक्ट्रॉन. yes, हाईएस्ट. हम्म, सो हैप्पी टू रिसीव. sir. हम्म, Okay, sir. एंड इफ यू गो डाउन अ ग्रुप एंड हम्म, आई थिंक हम जब पढ़े ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेरा अपना मानना है वी शुड ओनली फोकस ऑन 17. Because इसमें गैसेस ज्यादा है ना, गैस गैस है. हाँ सही ऑक्सीजन भी गैस है, वहां भी स्टडी कर सकता हूं मैं. तो हाँ मुझे लगता है 15, 16 और 17 हम्म, काम के हैं. बाकी क्योंकि कार्बन तो वो है, तो वो तो कोवलेंट बॉन्डिंग फिर वो तो छोड़ दो. तो 15, 16, 17 में हमें देखना चाहिए, और मेनली हमारा फोकस 17 पे होना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. बढ़िया, सबसे वही रहेगा. ठीक है And सर it goes down, by the way. Okay, if you go down this group, halogen group, हाँ the electron affinity decreases. ओके सर Okay, so it's okay. तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी आप देख रहे हो छोटी होती जा रही है जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं. सर 328, 349, हाँ 32.5, right? So it's ओके okay. अगर आप देखो पीरियड 2 to 3 में जाना आप जरा, फ्लोरीन टू क्लोरीन में. हाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखो क्या हो रहा है उसको. डिक्रीज F2Cl, yes. अच्छा अच्छा ओके सर काफी डिटेल है इसके अंदर. या यू वर सेइंग समथिंग. नहीं सर ऑक्सीजन और सल्फर में भी सल्फर की कम होगी हाँ, ऑक्सीजन और सल्फर. ओके, yes, sir. वो सल्फाइड बनाता तो भाई हाँ है ना, वो सल्फाइड बनाता है. और सो सबसे ज्यादा नेगेटिव तो आप देखोगे तो हेलोजन्स हैं. यस सर तो ग्रुप 7 जो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, हाँ सो हेलोजन्स आर रिलीजिंग द मोस्ट एनर्जी. यस सर So they become very stable ना after that 287 gets into 288. यस सर तो इसलिए मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सुनो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका 17 नंबर ग्रुप है. 17 यस सर यस. तो मेनली गैसेज ही हैं या यस सर दैट इज द बेस्ट वन. क्या यस सर हाँ, अगर मैं आपको बोलूं हाउ डज द एंथैल्पी गेन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी गेट impacted by with half filled और fully filled orbital, तो वो जब हमने मेटल में एग्जांपल देखा था मैग्नीशियम, हाँ because it is NS2, it is fully filled, it will not accept the electron very easily. So बिकॉज़ फील्ड है ना yeah, so if you're half filled, you will have more affinity.
you would still agree to have the electron because you're half filled. बट आपका फुल फील्ड होगा एंड वो तो इनर्ट गैसेस हो गई. आप मैग्नीशियम के बारे में बोल रहे थे ना, किसके बारे में? मैग्नीशियम आप वो बता हाँ रहे हाँ, मेटल्स में थे. NS1 versus NS2. NS2 will not accept it. ओके. वो तो भरा हुआ है ना 2. हाँ. Why will it have any tendency? नहीं. जो NS1 है उसमें थोड़ी टेंडेंसी है. हाँ, क्योंकि इसमें That tendency is a theoretical, क्योंकि actually electron gain of a metal, electrons are willing to leave an atom. ये सिर्फ theoretical discussion है कि we can add an electron, but you can't. You will only lose that electron, NS1 वाला. And in fact जो magnesium का भी जो NS2 है, हाँ. वो lose करने के बाद magnesium becomes 2,8. Yes, तो Currently is 2,8,2. Why will it accept any electron anyways? yes, If you're 281, why will you accept electron? But why does a question arise? You will only end up losing these electrons. So मेरे ख्याल से it's a futile discussion to discuss affinity of metals towards electrons. It does not exist. okay, sir. But theoretical है, orbital half full है. But really speaking, the discussion point for electron affinity should be P block is where your whole focus should be there. Okay, sir. नहीं? हाँ सर. Right. ठीक है, मेरे ख्याल से let's do this tomorrow. Let's discuss electron. Today we will discuss ionic radius. Yes, sir. We have discussed isoelectronic species radius, magnesium से लेकर nitrogen. How does it impact? Although the magnesium being the largest atomic number still fails to have the largest size. Yes, sir. यही पढ़ा ना हमने हाँ. कि magnesium has 12 with the same number of electrons. हाँ. It is still the smallest cation. Yes, sir. And nitrogen is the biggest, N3 minus. It gains and size increases. Yes, sir. हमने आयनिक रेडियस पढ़ा, कटाइन एनाइन, फिर हमने पढ़ा आइसोइलेक्ट्रॉनिक का, उसके बाद हमने एंथैल्पी के ऊपर we have done a discussion of electron gain enthalpy. Yes, sir. And that our main focus should be on the halogens, which is P block पे ज्यादा focus होना चाहिए हमारा. हाँ. और P block के अंदर जो है वो when we start and second, the fourth thing we actually learned was the impact of even in gases, although the first electron is made by losing the energy, but if the gas, for example oxygen, gains the second electron, the net result is going to be net gain of energy by the system, not loss. Yes, sir. Although the affinity should have resulted in a negative energy, which means loss of energy to become stable, but that's not the case because the second electron does not come easily because it gets repulsion. Although oxygen becomes very stable by getting the second electron, yet it does not, because of the simple reason that oxygen is 2,6. Yes, sir. 2,6 होता है ना, हाँ. तो 2,8 बनना चाहता है वो. तो गेन कर सकते हैं ना 2 इलेक्ट्रॉन. हाँ, लेकिन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के बाद नेगेटिव बन जाता है ना, राइट. तो वो जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान नहीं हो जाता, मुश्किल ही हो जाता है, क्योंकि वो नेगेटिव ऑलरेडी बन चुका है. हाँ सर. और अब उसको दूसरा देना है तो अब काम करो. सो विच मीन्स द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर इवन हेलोजेंस कम्स आउट टू बी अ पॉजिटिव वैल्यू फाइनली फॉर डाइवेलेंट सिचुएशन, जहां 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं. एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो कोई बात नहीं, वो फर्स्ट स्टेप के अंदर वो नेगेटिव रहेगा, बट सेकेंड स्टेप के बाद वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. नेट भी पॉजिटिव ही आएगा. ठीक है. सो वी हैव कवर्ड 2 more properties. हाँ सर. And now we are left with only, I think, which property?
हम अगर देखें तो हमारी आयनिक रेडियस भी हो गई, हाँ आयनाइजेशन एनर्जी भी हो गई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हो गई, यस सर हमें अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हो गई, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी रह गई हमारी, हाँ तो electronegativity. If you do electronegativity, and I'll give you a glimpse of electronegativity. If a ओके सर अब हमने सब डिस्कस कर लिया, गैस मेटल सब देख लिया, हाँ हमने उसको नहीं देखा अभी तक, वो जो हमारे वो है कोवलेंट वालों को। हाँ वो जब तो कोवलेंट, हाँ, वो शेयरिंग तो होती है इलेक्ट्रॉन की, लेकिन हम्म, उनमें से एक ताकतवर होता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, अच्छा दूसरों से पहले हिस्सेदारी लेता है इलेक्ट्रॉन की हाँ कि तू मेरे साथ बन जा, हाँ लेकिन फिर अपनी तरफ खींच लेता है इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को, और अच्छा खुद खुद थोड़ा सा नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ओके तो ये जो पावर है एक कोवलेंट बॉन्ड बना के चोरी करने की दूसरे के इलेक्ट्रॉन को, ये पढ़ेंगे हम इन द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इफ यू कैन स्टील अदर पीपल्स चार्ज बाय फर्स्ट इनवाइटिंग देम टू बिल्ड अ बॉन्ड विद यू एंड देन स्टीलिंग इट, यू आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। यस सर ठीक है ठीक है, सो लेट्स नॉट इंट्रोड्यूस वन मोर टॉपिक ओके एंड लेट्स डू इट टुमारो। ओके सर ठीक है, हाँ जी सी यू टुमारो देन, बाय, बाय सर थैंक यू टेक केयर।